Hello, my dear children. Welcome back to the Knowledge series by Amit Publishing House. Children, I am Vandana and we are doing Computer Class 6. Children, this is your book and the name of your book is Let's Click, a Trendy Way to Learn Computers. So today we are going to start chapter number 9 and the name of the chapter is Introduction to Python. So here we are going to learn what is Python. So children, let's learn a programming software. It is a programming software and this is Python. So here in this chapter we are going to learn about features of Python, installing Python, getting started with Python, variables in Python, working in script mode and data types. So children, Python is a popular high-level programming language and it is a powerful language used for general purpose programming. So ये जो Python है ये high-level programming language है और इसमें हम programming करते हैं. Python was developed by Guido van Rossum. He started applying Python in 1989. So Python को develop किया था Guido van रॉसम ने और उन्होंने 1989 में से स्टार्ट कर दिया था. Python is extensively used to develop games, websites, graphical user interface programs and web applications. तो Python में हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. हम गेम्स बना सकते हैं, हम वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं, हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करके प्रोग्राम्स बना सकते हैं एंड इवन हम वेब applications भी बना सकते हैं. Let's learn the features of Python. Following are the features of Python. The first is easy to code. It is very easy to write programs in Python as compared to other high-level programming languages. तो बहुत सारे programming languages हैं, high-level programming languages हैं, लेकिन ये जो Python है, इसमें हम easily code कर सकते हैं. कोई भी person easily code कर सकता है. It is because the language used to write Python code is similar to the English language. क्योंकि यहाँ पे जो language use की जाती है वो English language की एकदम same है. Here the next point says open source language. This is an open source language. Python is free and open source programming language, and open source language is one which can easily improve and disturbed by anyone. So Python क्या है? एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, इसीलिए इसे हम इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं किसी को भी. You can download Python free of cost and use it in any operating system. हम इसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं, such as Windows, Mac और Linux. तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में इन सब में हम इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट फीचर इज दैट इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. पाइथन जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है. पाइथन हैज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच. इसमें एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है एंड दिस मीन्स दैट द प्रोग्राम्स आर डिजाइन्ड यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस. इसका ये मतलब है कि ये जो है इसे जब डिजाइन किया गया है इसमें जो ऑब्जेक्ट्स है और जो क्लासेस हैं वो इजीली एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट फीचर इज इंटीग्रेटेड एंड एक्सटेंसिबल लैंग्वेज. ये एक इंटीग्रेटेड और एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है. वी कैन इजीली इंटीग्रेट पाइथन विद अदर लैंग्वेजेस सच एज सी और C++. वी कैन आल्सो राइट एंड कंपाइल अ पाइथन कोड इन C और C++. तो हम इस लैंग्वेज को इजीली हम इंटीग्रेट कर सकते हैं दूसरे लैंग्वेजेस के साथ और हम लिख सकते हैं या फिर इन्हें कंपाइल कर सकते हैं C या फिर C++ लैंग्वेजेस के साथ. इंटीग्रेटेड लैंग्वेज. द कोड यू क्रिएट इन पाइथन इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन. तो जो भी कोड हम यहाँ पे पाइथन में बनाते हैं उसे हम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, which makes it easy to correct any error. जो क्या करता है किसी भी एरर को इजीली करेक्ट करने में हेल्प करता है. On execution, a Python code is immediately converted into an intermediate form. So जैसे हम execute करते हैं ये जो Python code है ये एकदम से ही convert हो जाता है intermediate form.
दिस इज नोन एज बाइट कोड, जिसे हम बाइट कोड भी कहते हैं. द बाइट कोड मेक्स इट इजियर टू एग्जीक्यूट और रन द कोड इन फ्यूचर. ये जो बाइट कोड है ये क्या करता है, हेल्प करता है एग्जीक्यूट करने में या फिर रन करने में कोड को फ्यूचर में भी. नेक्स्ट फीचर इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज. So Python is a dynamically typed language. This means that you do not need to declare the type of variables in advance. So इसमें क्या है, Python एक dynamic language है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, we do not need to declare the type of variable in advance. हमें पहले से बताने की जरूरत नहीं कि कौन से टाइप का वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं. For example, if you write a is equal to 15, you do not need to specify the variable a as an integer or string. तो a को स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, ना तो इंटीजर के फॉर्म में ना ही स्ट्रिंग के फॉर्म में. नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी इंस्टॉल इट. पाइथन कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर बाय फॉलोइंग द गिवन स्टेप्स. तो कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, तो चलिए फटाफट हम पाइथन अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेते हैं. सो हियर first what we have to do to download Python, visit the site www.python.org/downloads and click on the download Python button under download the latest version of Windows. You will get the .exe file. तो हमें कहाँ जाना है, सबसे पहले www.python.org/downloads पे जाना है. अब वहां पे जाके हमें क्या करना है, डाउनलोड करना है. वहां पे जाके ये स्क्रीन आ जाएगी हमारे सामने और यहाँ पे जाके डाउनलोड्स में जाके लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज हमें डाउनलोड करनी है. सो हियर द लेटेस्ट इज 3.10.6. अब आपको जैसे आपने डाउनलोड किया आपको .exe फाइल मिल जाएगी. डबल क्लिक ऑन द .exe फाइल. अब हमें क्या करना है, इस exe फाइल पे डबल क्लिक करना है. क्लिक ऑन रन एंड इंस्टॉल नाउ इन द डायलॉग बॉक्स. अब जैसे आप इस फाइल पे क्लिक करोगे, रन एंड इंस्टॉल बटन आएगा, उस पर आपको फटाफट से क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना है. टू स्टार्ट द इंस्टॉलेशन, कीप फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस टू इंस्टॉल पाइथन. सो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आएंगे, आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, आप उस पर क्लिक करते जाओ और लास्ट में जाके हमें फिनिश बटन पे क्लिक करना है. सो नाउ लेट्स लर्न हाउ कैन वी स्टार्ट विद पाइथन. So after installing Python, you can start with any of the following two modes. So जैसे हमने Python को इंस्टॉल कर लिया, हम दो मोड्स को फॉलो कर सकते हैं. पहला है इंटरैक्टिव मोड, दूसरा है स्क्रिप्ट मोड. सो द फर्स्ट इंटरैक्टिव मोड इज अ डिफॉल्ट मोड. ये डिफॉल्ट मोड है, ये ऑलरेडी इनबिल्ट मोड है और जब भी आप इसे खोलोगे ये पहले से खुला हुआ है. To launch the interactive mode, click on Start, then scroll down to Python 3.10.6 idle and then the idle screen will appear. So जैसे हम इन सारे फीचर्स को यूज करेंगे, हम सारे प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, तो क्या होगी, ये आइडल स्क्रीन हमारे सामने है. दिस इज द आइडल स्क्रीन व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ लेट्स लर्न द कंपोनेंट्स ऑफ आइडल स्क्रीन. अब स्क्रीन तो खोल लिया, उसमें क्या क्या चीजें हैं, लेट्स रीड इट. So just like any other application window, the idle Python screen has the following components. So जैसे कि दूसरे application windows होते हैं, वैसे ये जो हमारी idle Python screen है, उसमें भी बहुत सारे components हैं. So let's see what are the components. The first one is the title bar. This is the area that displays the name of the application. तो title bar में as we already know, यहाँ पे हमेशा area होता है, means नेम, आपके जो एप्लीकेशन उसका नाम डिस्प्ले होता है. एंड द डॉक्यूमेंट, इट ऑल्सो कंटेन्स कमांड बटन्स लाइक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज बटन. सो ये सारे बटन भी आपको यहाँ टाइटल बार में ही मिलेंगे. नेक्स्ट कम्स द मेन्यू बार. द मेन्यू बार कंसिस्ट ऑफ वेरियस मेन्यूज विद डिफरेंट ऑपरेशंस. इसमें बहुत सारे मेन्यूज है जिसमें अलग अलग ऑपरेशंस हैं. द मेन्यूज ऑफ द पाइथन विंडो आर फाइल, edit, shell, debug option, window and help. तो मेन्यू बार में आपको ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. So these all options you can see here in the menu bar. Now let's learn what is the file menu. In this menu, the menu is used to work with the options related to the currently used file. So इसमें जो है, जो भी options है वो जो अभी फाइल यूज हो रही है उससे related होंगे. It includes some options like opening the new file, opening an existing file, viewing recently used files,
सेविंग द फाइल, क्लोजिंग द फाइल एंड एग्जिटिंग द फाइल। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस फाइल मेन्यू में इजिली मिल जाएंगी, जो अभी करंट रिलेटेड फाइल है उससे रिलेटेड। नेक्स्ट कम्स द एडिट मेन्यू। दिस मेन्यू इज जनरली यूज्ड टू एडिट द फाइल इन यूज। तो जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम है। सो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम एडिट कर सकते हैं जो भी फाइल है हमारी। यू कैन कट, कॉपी और पेस्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट। आप यहाँ पे टेक्स्ट को कट, कॉपी या पेस्ट भी कर सकते हैं। You can also search for a particular text और phrase। हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर फ्रेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं and even replace it with some other text। हम उसे दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस भी कर सकते हैं। Now let's learn what is the help menu। To get help related to any topic of Python, press the F1 key। तो सपोज हम पाइथन पे वर्क करें और हमें हेल्प की जरूरत है, कुछ भी चीज हमें समझ में नहीं आती तो हमें कहाँ जाना होगा, हेल्प मेन्यू में जाना होगा। तो यहाँ जाने के लिए हमें क्या करना है, F1 की को प्रेस करना है या फिर क्लिक ऑन द हेल्प मेन्यू, या फिर आप जाइए सीधा हेल्प मेन्यू पे क्लिक करिए। सो चिल्ड्रन, दिस इज योर फाइल मेन्यू, जिसमें ये सारी चीजें आपको दिखेंगी, एडिट मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू। नेक्स्ट इज कमांड प्रॉम्प्ट। द कमांड प्रॉम्प्ट इज डिनोटेड बाय दिस आइकन। यू कैन सी 3 signs are there, greater than signs are there। So a command prompt, this is a command prompt and this is the area where you type the code। इसके सामने ही हमें कोड को टाइप करना होता है जो भी हम लिख रहे हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस बार। द स्टेटस बार टेल्स यू द करंट स्टेटस ऑफ योर कंट्रोल और कर्सर ऑन द विंडो। ये स्टेटस बार क्या करता है, ये हमें जो अभी करंट स्टेटस चल रहा है हमारे विंडो की उसे बताता है, कर्सर के बारे में बताते हैं और कंट्रोल्स के बारे में बताते हैं। नाउ वर्किंग इन इंटरैक्टिव मोड। तो अब हम दूसरे मोड के बारे में पढ़ेंगे विच इज इंटरैक्टिव मोड। सो इसमें कैसे हम वर्क करते हैं। सो इन द इंटरैक्टिव मोड इन ऑफ पाइथन द इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन गिविंग द आउटपुट। तो इस मोड में क्या होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसे एग्जीक्यूट किया जाता है एक लाइन के बाद दूसरी लाइन में और उसके बाद आउटपुट हमें मिलता जाता है। इन दिस मोड द कमांड्स आर टाइप्ड नेक्स्ट टू द पाइथन कमांड। सो पाइथन कमांड के जस्ट नेक्स्ट में ही हमें कमांड्स को टाइप करना होता है। ये है हमारा पाइथन कमांड, तो उसके जस्ट साइड में ही हमें अपना कमांड लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टाइप 3 + 6 नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट, इट विल गिव यू द रिजल्ट एज 9। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि अगर हम इस प्रॉम्प्ट के बगल में लिखते हैं 3 + 6 तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे हमें आंसर मिल जाएगा 9। टू वर्क इन द इंटरैक्टिव मोड फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। अब इंटरैक्टिव मोड में वर्क करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस है उसे हमें फॉलो करना होता है। फर्स्ट इज क्लिक ऑन द स्टार्ट पाइथन 3.10.6 idle Python। It will open the Python shell window interactive mode where you will see the Python prompt। तो पहले हमें Python स्क्रीन को खोलना है, तो यार आइडल मोड में खुला है हमारे सामने। टाइप द कमांड नेक्स्ट टू द पाइथन प्रॉम्प्ट। अभी ये जो पाइथन प्रॉम्प्ट बन रहे इतने सारे, इनके सामने हमें जो है कमांड को टाइप करना है 1 by 1 एज शोन इन द फिगर गिवन बिलो एंड प्रेस एंटर की। और जैसे हमने कमांड को एंटर कर दिया, हमें क्या करना है, एंटर की को प्रेस करना है। पाइथन विल इमीडिएटली गिव द आउटपुट फॉर ईच ऑफ देम। पाइथन क्या करेगा, हर एक कमांड के लिए अपना जो भी आउटपुट है वो देगा। The interactive mode is useful for testing code। कोड्स वगैरह अगर आपको टेस्ट करने हैं तो ये मोड काफी ज्यादा यूजफुल है। Where you type the commands one at a time to get the result of error immediately। यहाँ पे हम कमांड्स को लिखते हैं और फटाफट हमें रिजल्ट मिल जाता है। Now next is printing a message। The print, this is the you can say icon of print। तो print जब भी हम करेंगे, print कमांड को जब भी हम यूज करेंगे तो print इन बॉक्स के बीच में हमें कमांड लिखना होगा। सो द प्रिंट फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ एनी कमांड ऑन द स्क्रीन। इट कैन बी यूज्ड टू प्रिंट द स्पेसिफाइड मैसेज। ये जो हम यूज करते हैं कुछ स्पेशल मैसेजेस को लिखने के लिए। फॉर एग्जांपल, अब हमारे जो प्रिंट कमांड हमने यहाँ पे लगाया, प्रिंट कमांड में हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड विल डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। सो जैसे हम यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो प्रिंट के सामने आपने ये लिखा है। सो दिस इज योर आउटपुट।
Python is a case sensitive programming language. ये काफी ज्यादा case sensitive है. It means that Python differentiates between capital and small letters. So ये काफी ज्यादा case sensitive है, means capital letter और small letter में ये differentiate करता है. For example, print P capital and print P small are two different things in Python. अगर आपने print के साथ P capital लिख दिया और P small लिख दिया तो दोनों ही अलग चीजें हैं पाइथन के लिए. Where print is a valid command in Python while print is just a word and not a command. So यहाँ पे अगर आपने print लिखा small print तो इसका मतलब पाइथन उसे एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आपने अगर कैपिटल प्रिंट लिख दिया तो पाइथन उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि वो पाइथन के लिए कमांड नहीं है. सो आप देख सकते हो यहाँ जहां पे प्रिंट लिखा है वो कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखा हुआ है. You can also pass more than one argument in the print function. Print function में हम एक से ज्यादा चीजें भी लिख सकते हैं. In such a case, the arguments are separated by comma and shown in the figure. So अब आप एक साथ कई सारी चीजें print command में लिखेंगे तो आप उसको कैसे सेपरेट करेंगे? कॉमा से सेपरेट करेंगे. So यहाँ पे आप देखेंगे print में लिखा हुआ है Python is a high level language. तो ये एक कमांड था. अब इसके आगे आपने कॉमा लगाया और दूसरा लिख दिया it has easy syntax. तो आप देखो दो अलग अलग चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं एक साथ. सिमिलरली अब हमने यहाँ पे लिखा है 10 plus 56 is equal to और यहाँ पे लिखा है बस 10 plus 56 कॉमा लगा के. तो पाइथन ने क्या किया, इस ग्रीन मींस इज इक्वल टू वाले को ही एक्सेप्ट किया, दूसरे वाले को एक्सेप्ट नहीं किया. यूजिंग आइडल एज अ कैलकुलेटर. आइडल को हम एज अ कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं. To evaluate an arithmetic expressions, it's not necessary to use the print function. किसी भी arithmetic expression को evaluate करने के लिए जरूरी नहीं कि print function को use किया जाए. If you type an arithmetic expressions at the Python command, अगर आप क्या करोगे, किसी भी arithmetic expression को Python command में use करोगे, prompt करोगे and press the enter key, the interpreter automatically evaluates it. Interpreter क्या करेगा, उसे फटाफट evaluate कर देगा and it will show us the result. In this case, the interpreter acts as a simple calculator. अब इस केस में क्या होता है, ये जो interpreter है एक simple calculator की तरह ही work करता है. The expressions are evaluated using operators. ये जो expressions है इन्हें evaluate कर सकते हैं हम operators की तरह, जैसे कि plus, minus, multiply and divide. The basic BODMAS rules are followed by performing calculation. So यहाँ पे भी जैसे हम मैथ्स में BODMAS रूल को फॉलो करते हैं किसी भी कैलकुलेशन के लिए, सेम यहाँ पे भी फॉलो होता है BODMAS रूल. Variables in Python. If you need to store some food for future use, what do you require? अगर आपको कुछ फूड चाहिए फ्यूचर के लिए तो आप क्या लोगे? Well, you will need a container to store the food. आपको क्या चाहिए, एक बर्तन चाहिए जिसमें आप फूड को स्टोर कर सको. Similarly, when you are working with the values in Python, you require some storage locations. तो जब आप Python की कुछ values के साथ work करो तो आपको भी कुछ storage location की जरूरत है to hold the values for later use. इन values को आगे के लिए store करने के लिए. Named storage locations in the computer memory. So, which is used to store data are called variables. So ये जो स्टोरेज लोकेशंस हैं हमारे कंप्यूटर मेमोरी में जिसमें हम डेटा को इजीली स्टोर कर सकते हैं, नहीं हम वेरिएबल्स कहते हैं. अ वेरिएबल कैन स्टोर ओनली वन डेटा वैल्यू एट अ टाइम. और ये वेरिएबल क्या कर सकता है, एक ही डेटा को एक समय में स्टोर कर सकता है. When a new value is stored in the variable, its previous value gets overwritten. तो जब हम क्या करते हैं, एक नई वेरिएबल को लिखते हैं तो जो पुराने वेरिएबल है वो अपने आप हट जाता है. Assigning values to variables. और values कैसे assign करते हैं? Values are assigned to variables using the assignment operator. This is the assignment operator. So इसमें हम values को add कर सकते हैं variables. For example, the statement x, which is equal to 25, assigns the value 25 in the variable x. तो x is equal to 25 हमें लिखना है, इसका मतलब हमें क्या कर रहे हैं, x को हम 25 एक वैल्यू दे रहे हैं. Observe the following codes to understand the use of assignment operators. So assignment operator को कैसे यूज करना है, let's see.
So you can see a is equal to 10. तो इसको जो है यहाँ पे a को वैल्यू दी गई है 10 की, इसको एक वैल्यू असाइन की गई। सिमिलरली b इज इक्वल टू 20, b को वैल्यू दी गई है 20 की। अब c इज सेइंग a प्लस b, तो यहाँ पे ये जो नंबर्स है a की जो वैल्यू और b की वैल्यू, इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। और अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए तो a इज इक्वल टू c माइनस 10। सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो a की वैल्यू है 10 और जो c की वैल्यू है a प्लस b, वो उसमें से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो वी कैन सी द वैल्यू इज असाइन्ड टू वेरिएबल a नाउ। सो नाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल a इज 20 एंड नॉट 10। तो अब क्या होगा इस केस में, जो a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी, ना कि 10, क्योंकि पहले हमने 10 दिए थी वैल्यू, लेकिन बाद में जब हमने यहाँ पे लिखा तो a की वैल्यू हमने चेंज कर दी और वो हो गई 20। रूल्स टू राइट द वेरिएबल नेम्स, हम क्या क्या रूल्स को फॉलो करते हैं वेरिएबल नेम को लिखने के लिए। देयर आर सर्टेन रूल्स इन पाइथन दैट हैव टू बी फॉलोड टू फॉर्म वैलिड वेरिएबल नेम्स। तो कुछ रूल्स है जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है वेरिएबल नेम्स को लिखने के लिए। द रूल्स फॉर वैलिड आइडेंटिफायर्स आर, ये जो रूल्स है क्या है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ अल्फाबेट। ये जो वेरिएबल नेम है ये अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल या फिर स्मॉल, और एन अंडरस्कोर या फिर अंडरस्कोर लगा होना चाहिए। वेरिएबल नेम कैन कंसिस्ट ऑफ लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। ये जो वेरिएबल नेम है इनमें हम ये तीनों चीजें लिख सकते हैं। नो अदर कैरेक्टर इज अलाउड, यहाँ पे और कोई कैरेक्टर हम नहीं लिख सकते। अ कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम, एक कीवर्ड को हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। अ वेरिएबल नेम कैन बी ऑफ एनी लेंथ बट नो स्पेस इज अलाउड। ये जो वेरिएबल नेम है ये किसी भी लेंथ का हो सकता है, लेकिन इसमें स्पेस अलाउ नहीं है। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, ये जो वेरिएबल नेम्स है ये केस सेंसिटिव है। सो यहाँ पे अगर हमने एज को कैपिटल में लिख दिया और एज को स्मॉल लिख दिया, दोनों को ये अलग समझेगा, सेम नहीं समझेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ सम वैलिड वेरिएबल नेम्स, सो कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स यहाँ पे दिए गए हैं। द फर्स्ट इज क्लास, next is emp_code, then toll, salary, then min value, then val_fee, age 1980 and a45r। so ये कुछ वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं जो ऑलरेडी इसके अंदर है, वो लिखे गए हैं। नाउ लेट्स लर्न द एग्जाम्पल्स ऑफ सम इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। कुछ इनवैलिड वेरिएबल नेम्स पढ़ते हैं। जैसा पहला लिखा हुआ है एम्प्लॉय कोड, ये एक इनवैलिड है, मींस इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा हमारा कंप्यूटर। स्पेस इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, क्यों नहीं अलाउ करेगा कंप्यूटर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नेम में कभी भी स्पेस नहीं होना चाहिए। और आप देख सकते हैं एम्प्लॉय और कोड के बीच में स्पेस है। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ डिजिट। अब दूसरा जो है इसमें क्या एरर है कि ये जो वेरिएबल नेम है डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो डिजिट से कभी भी कोई भी वेरिएबल नेम स्टार्ट नहीं होता। नेक्स्ट इज डॉट इज नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम, किसी भी वेरिएबल नेम में डॉट नहीं यूज करना है। स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम। अब स्पेशल कैरेक्टर क्या है यहाँ पे, ये @ तो ये हम यूज नहीं कर सकते। else is a keyword in Python, so it cannot be used as a variable name. else एक कीवर्ड है पाइथन में, इसलिए इसे हम यूज नहीं कर सकते हैं as a variable name. So if a variable is being used without assigning a value, अगर हम किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं बिना वैल्यू दिए, that is if the variable is not defined, it gives an error. So अगर हम इस वेरिएबल को लिख रहे हैं तो ये क्या करेगा, एक एरर मैसेज देगा। The following code gives an error because the variable x is used in the print function. ये जो कोड है ये एक एरर देता है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल x है उसे हम प्रिंट फंक्शन में यूज करते हैं विदाउट बीइंग डिफाइंड, बिना डिफाइन किए। सो ये यू कैन सी द स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ अस। अब यहाँ पे a is given 100 value, b is given 100 value and print x is written. So this is what? This is an error message. So यहाँ पे लिखा है name x is not defined, तो यहाँ पे x defined नहीं है।
नाउ चिल्ड्रन लेट्स लर्न हाउ कैन वी वर्क इन स्क्रिप्ट मोड. अभी हमने पढ़ा था एक मोड इंटरैक्टिव मोड, अब हम पढ़ेंगे स्क्रिप्ट मोड के बारे में. द इंटरैक्टिव मोड इज प्रिफर्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम. छोटे मोटे प्रोग्राम्स की बात की जाए तो उसमें इंटरैक्टिव मोड काफी ज्यादा अच्छा है. Whereas in a few commands are to be executed, जहाँ पे थोड़े बहुत commands को execute करना होता है. This is because the output of in the interactive mode is compressed between the statements. इसमें क्या होता है, जो आउटपुट होता है इंटरैक्टिव मोड में वो कंप्रेस किया जाता है स्टेटमेंट्स के बीच में. एंड may create confusion while writing long programs. और ये क्या करते हैं, कंफ्यूजन को क्रिएट करते हैं जब हम लॉन्ग प्रोग्राम्स लिखते हैं. For writing lengthy programs in Python, the script mode is used. अब लेंथी प्रोग्राम्स को अगर हमें लिखना है पाइथन में तो हमें क्या चाहिए, स्क्रिप्ट मोड चाहिए होता है. यूजिंग दिस मोड यू कैन क्रिएट एंड एडिट पाइथन प्रोग्राम्स. अब इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, हम पाइथन प्रोग्राम्स को क्रिएट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं. इन दिस मोड यू कैन ऑल्सो सेव योर फाइल्स. इस मोड में हम क्या कर सकते हैं, फाइल्स को सेव कर सकते हैं so that they can be used later, ताकि ये बाद में यूज किए जा सके. The complete script is written in an editor. ये जो पूरा स्क्रिप्ट है इसे हम एडिटर में लिखते हैं. Creating module script programming files. अब कैसे हम ये चीजें बना सकते हैं, let's see. To start with the script mode for creating a module or program, follow the given steps. तो हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट मोड को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उसे फॉलो करना होता है. फर्स्ट हमें क्या करना है, वी हैव टू ओपन आवर आइडल पाइथन शेल. हमें अपना आइडल पाइथन शेल स्टार्ट करना है जिसे हम इंटरैक्टिव मोड भी कहते हैं. अब हमें क्या करना है, पहले हम फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से न्यू फाइल पे जाएंगे एंड द आइडल पाइथन शेल एज शोन इन द फिगर विल बी गिवन बिलो. ऐसे जो आपको स्क्रीन दिखाई देगी. इन द न्यू विंडो that opens, type the command you want to save as a program as shown in the figure. So जो भी हमें यहाँ पे चाहिए उसे हम जो है एंटर कर सकते हैं, जो भी कमांड हमें चाहिए. तो यहाँ पे हमने एंटर किया a is equal to 10, b is equal to 20 and c is equal to a plus b. So यहाँ पे print is saying the sum of the numbers is now. प्रिंट कमांड लिख के हमने लिख दिया कि जो नंबर्स है उनका जो सम है वो आपको बताना है. नाउ क्लिक ऑन फाइल, देन सेव एंड सेव द फाइल विद द नेम proc.py where p.py is the extension of Python file. ये जो .py है वो एक्सटेंशन है Python फाइल का. ये यू कैन सी यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है. नाउ वी कैन सेव इट फ्रॉम हियर. Running module, script और program. After the program file is created, जैसे ये program file बन चुकी है, you can run the program by following the given steps. तो अब हम इस program को run कर सकते हैं जो steps दिए गए हैं. What we have to do first, we have to open the idle Python screen and then we have to click on the file, open option. If the file is already open, you can directly follow the next step. अगर फाइल पहले से खुली है तो हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है. Click on run module and press F5. Now it will execute all commands. ये क्या करेगा, जितने भी कमांड्स हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा. The output will be generated on the Python shell window. ये जो भी आउटपुट है वो Python shell window पे जनरेट हो जाएगा. Observe the difference between script mode and the interactive mode as shown in figure given below. हमें क्या करना है, जो स्क्रिप्ट मोड और इंटरैक्टिव मोड में जो डिफरेंस है उसे हम यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं. ये हमारा जो है स्क्रिप्ट मोड और यहाँ पे ये इंटरैक्टिव मोड है. आप देख सकते हो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में. नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स. सपोज यू हैव प्लान्ड अ हॉलिडे ट्रिप ड्यूरिंग वेकेशन and you have to book tickets for your family members. तो आपने जो हॉलिडे ट्रिप का प्लान किया है और आपको टिकट्स बुक करनी है. The first section that you need to take is to fill in the form to get the reservation done. तो पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं रिजर्वेशन करने से पहले. When you need to give your required details like train number, date of journey, name, age, etc. So हम क्या करते हैं, ये सारी डिटेल्स फिल करते हैं उसमें उस फॉर्म में.
Here every piece of data that you enter is of a specific type. As your name is a string type, age is the numeric type and date of journey is the date type. तो यहाँ पे हम जो भी डेटा यहाँ पे फिल करते हैं पाइथन में, जैसे कि अपना नेम, तो वो स्ट्रिंग टाइप में आता है. एज अगर हम टाइप कर रहे हैं तो न्यूमेरिक आएगा, नंबर्स लिखते हैं क्योंकि हम उसमें, और डेट ऑफ जर्नी जो है डेट टाइप में आता है. Similarly, you have to specify in the program which kind of values will be stored in the specific variable. ऐसे ही आपको यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा कि किस तरीके की वैल्यूज आपको स्टोर करनी है दी गई वेरिएबल्स में. बेसिक डेटा टाइप इन पाइथन. कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं इन पाइथन? आ डेटा टाइप रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन अ वेरिएबल. ये क्या बताता है किस तरीके का डेटा स्टोर किया गया है वेरिएबल्स में. The data stored in memory can be of many types. ये जो डेटा स्टोर किया जा रहा है मेमोरी में वो अलग अलग तरीके के होते हैं. Python has various standard data types. Python में अलग अलग standard data types है based on the type of values. कैसी values हैं उस पे बेस करता है. For example, a student's marks are stored in the numeric value. Student के जो मार्क है वो numeric values में स्टोर हैं, whereas his or her address is stored in alphanumeric characters. लेकिन उसका जो भी एज है या फिर एड्रेस है उसे हमने अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स में स्टोर कर रखा है. द बेसिक डेटा टाइप यूज इन पाइथन आर मेंशन्ड. कौन कौन से डेटा टाइप्स यूज होते हैं यहाँ पे? लेट्स सी. INT मींस इंटीजर. इट रिप्रेजेंट इंटीग्रल नंबर्स, नंबर्स विदाउट एनी फ्रैक्शनल पार्ट. ऐसे नंबर्स जिसमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना हो. There are three types of integers in Python. Python में तीन तरीके के integers होते हैं. First is integer which is int. Second is long integer which is long, long int, and third one is boolean bool. So here let's learn what are these. Int, which means integer, it stores value ranging from minus this to plus this. तो यहाँ से यहाँ तक की values को store करता है ये. Next is long integer. ये क्या करता है? It suppose the values that lie beyond the range of integers. ये क्या करता है? उन values को store करता है जो इनसे भी ऊपर है. Next is boolean, which is bool. It represents logical values in the form of true or false. जो भी logical values है उनको true or false की form में लिखता है. In boolean 0 represents false and 1 represents true. So अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे अगर 0 लिखा है it means it's false, नहीं तो it is true. Next is float. It represents floating point values. इसमें क्या है? floating point values हैं numbers with fractional part. The fractional part of a floating point number may be 0 as well. यहाँ पे जो number है floating part का वो 0 भी हो सकता है. Examples of floating numbers are 3.14, minus 48.6, 18.0, etc. तो ये floating numbers हैं. Next is string. A string data type represents strings or characters enclosed with single or double quotation mark. तो यहाँ पे string में क्या होता है? डबल या फिर सिंगल quotation marks लगे होते हैं, उसके बाद ही हम डेटा को लिखते हैं. Example of strings are hello. आप देख सकते हो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल quotation mark लगा हुआ है. My name में डबल लगे हुए हैं 218 and peace etc. So ये कुछ examples हैं string के. Some examples of data type in Python are, कुछ examples जो data type के हैं Python में वो हैं. Value को हम int में लिखते हैं. 7.9 जो है float में आता है. Computer application string है and 7 is greater than 3, ये bool है. You can assign a multi-line string to a variable by using 3 quotes. हम क्या कर सकते हैं? assign कर सकते हैं multi-line string to a variable 3 quotes से. For example, a is equal to, आप देख सकते हो 3 quotes लगे हैं. A data type represents a type of data stored in a variable. यहाँ पे जो data type है वो represent कर रहा है जो भी डेटा स्टोर किया गया है एक वेरिएबल में. द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स. यहाँ पे जो डेटा स्टोर किया गया है वो काफी सारे तरीके के होते हैं. एंड देन 3
quotes are again. Now let's learn how can we use input function. Input function को कैसे use करते हैं? Input function is used to accept the value for a variable from the user. ये जो input function है ये क्या करता है? Accept करता है value को किसी भी variable के from the user से. To input integer and float values, you can use int और float. तो आप वैल्यूज को इसमें डालने के लिए क्या कर सकते हो? आप int और या फिर फ्लोट दोनों यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद द इनपुट फंक्शन के साथ. सो ये यू कैन सी आपने जो है इनपुट यूज किया a इज इक्वल टू इनपुट एंड देन एंटर द फर्स्ट वैल्यू. नाउ b इनपुट एंटर द सेकंड वैल्यू. In Python, the input function takes one string argument. ये जो Python में जो input function है ये one string argument ही लेता है. This means that whatever value is being entered by the user, it will be taken as a string argument. So यहाँ पे इसका ये मतलब है कि जो भी एंट्री की जाएगी वैल्यू उसे हम string argument के रूप में लेंगे. Let's see this example. 2 input which is equal to enter the first value which is 200. Now b is equal to enter the first value again. So here it's 300. Now c is equal to a plus b. Print the command is written here 200 300. Observe in the above program when you add the two numbers. जब हम दो numbers को add करते हैं you do not get the sum. जब हमने दोनों नंबर्स को ऐड किया हमें सम वहां पे नहीं मिला. 200 300 लिखा हुआ आ गया. Rather the numbers are joined together and are printed as a string. लेकिन ये जो नंबर्स हैं इन्हें ज्वाइन कर दिया गया और इन्हें प्रिंट के रूप में लिखा गया. अब एग्जांपल 3 में हम देख सकते हैं क्या लिखा है. a इनपुट एंटर द फर्स्ट वैल्यू, b इनपुट एंटर द सेकंड वैल्यू व्हिच इज 200 and 300. अब यहाँ पे लिखा है प्रिंट a मल्टीप्लाई b. अब यहाँ पे आप देखो लिखा है error is given, can't multiply sequence by non-integer of type string. So type string के साथ हम इसे जो है multiply नहीं कर सकते. तो यहाँ पे ये एक error message आया. अब इस प्रोग्राम में क्या हुआ? In this program when you try to multiply these two values you get an error. जब दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं हमें एक error message आता है. This is because the string value cannot be multiplied together. हम दो string values को एक साथ multiply नहीं कर सकते. To work with the values provided by the user, Python provides a method to as discussed in the given example. अगर आप चाहते हो इन वैल्यूज के साथ वर्क करना तो आपको क्या करना होगा? इस मेथड को फॉलो करना होगा जो भी दिया हुआ है. So here a is equal to input int, then input enter the first number. b is equal to int input enter the second number. Print sum the number. So, the sum of the number is a plus b. So the number, the sum is, you can see here it is written 100 plus 100 is equal to 400. So ऐसे हम क्या कर सकते हैं? हम इनको यूज कर सकते हैं. Observe when you use int function. जब आप int function को यूज करते हैं the values are converted to integers and are added. जो भी वैल्यूज है उन्हें हम इंटीजर्स में कन्वर्ट करते हैं और उसे ऐड कर सकते हैं. Here are some more programs with integer inputs. तो यहाँ पे कुछ और programs हैं जिसमें integer inputs हैं. So here you can see first one is a is equal to int input enter the value. b is equal to int input enter the value as of b. Now a comma b is equal to b comma a. The value of a after overlapping is a and the value of b after overlapping is b. अब ओवरलैप हो गया दोनों वैल्यूज तो अब a की वैल्यू a हो गई और b की वैल्यू b हो गई. Here you can see another example is given. Now program number 2 is given. Here you have written some values and what is the result you can see in your book. And this is our idle screen. Now using print function. कैसे हम print function को use कर सकते हैं? The print function is used to print a message or value. किसी भी मैसेज को
या फिर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। इट कन्वर्ट्स द मैसेज और एन ऑब्जेक्ट इनटू अ स्ट्रिंग। ये क्या करता है, किसी भी मैसेज को या फिर ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है बिफोर राइटिंग इट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन में लिखने से पहले। इट कैन हैव मल्टीपल पैरामीटर्स, इसके जो है बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। इट सपोर्ट्स मल्टीपल एस्केप सीक्वेंस टू फॉर्मेट द आउटपुट। ये क्या कर सकता है, अलग अलग एस्केप सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है टू फॉर्मेट द आउटपुट, आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल /n which means new line, /t means tab space and /r means carriage return. So these are the few print functions. Now using separator with print function. अब separator को कैसे हम print function के साथ यूज कर सकते हैं? Use this bracket and then comma operator. When you use this comma operator as a separator among the values are displayed with a space between them. So जैसे हम comma लगाते हैं किन्हीं दो values के बीच में, तो जो भी values हैं वो कैसे appear होते हैं, ऐसा लगता है जैसे कि space हो उनके बीच में। तो हमने यहाँ लिखा a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30। अब हमने print लिख के लिख दिया a, b, c। तो जैसे हमने लिखा तो आउटपुट क्या आया, 10 space 20 space 30। यूजिंग टैब स्पेस, अब टैब स्पेस को जब हम यूज करते हैं तो /t when you use /t escape sequence as a separator among the values, सेपरेटर के रूप में हम अगर हम इन्हें यूज करते हैं, the values are displayed with a tab space, ये जो वैल्यूज हैं इसे हम टैब स्पेस की तरह लिखते हैं between them. So here you can see we have put the values A10, B20 and C30. Now A tab space, B tab space, C. So here you can see कि आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा स्पेस यहाँ पे इंक्रीज हो गया टैब की वजह से। Using new line character. This is new line character. A new line character in Python is used to end the line and start a new line. लाइन को खत्म करने के लिए और अगली लाइन को स्टार्ट करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। In Python, the new line character can be used with the input function and with the print function. Python में हम इसे यूज कर सकते हैं input function के तरीके से और print function के तरीके से। The new line is a new line character used in Python. ये एक new line character है जो Python में यूज किया जाता है। अब A10, B20 and C30 is written with new line. So आप देख सकते हो A, now in the next line 20 is written and in the next line 30 is written. यहाँ पे line change हो जाएगी जब हम इसे यूज करेंगे। Let us consider another example. Suppose you want to make a program to accept the names. तो आप अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमें क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम name, age and marks of strings we are going to write. For this, all the following code in the Python script we have to write. So here you can see name, then input, then enter your name, age, input and enter your age, class, input, enter your class. Print, your name is name, your age is age and your class is class. Now you can see what output we get. So enter your name, Priyam, now age is 2, class pre-nursery, again your name is Priyam, your age is 2 and your class is pre-nursery. So this is the result that we will get. Now in the Python script file add /n with the input and print function. हमें अब print script file में हमें ये /n यूज करना है. So now here we have used the function and see what result we get. We get result as enter your name as Lavanya, enter yours as 4 and enter your class as nursery. Your name is Lavanya, your age is 4 and your class is nursery. In the above output window, in order to give a better understanding, the text and values are placed on one after another. तो ताकि हम इजीली किसी भी चीज को समझ सके, इसके लिए ये जो भी चीजें लिखी गई हैं आप देख सकते हो one after another लिखी गई है, एक के बाद एक लिखी गई है. Now children, let's quickly come to the recall time.
Python is a high-level language used to write code for a computer program. Python was created by Guido van Rossum when he was working at the Centrum Wiskunde and Informatica, which is a national research institute for mathematics and computer science in Netherlands. The interactive mode is useful for testing code where you type the commands one at a time and get the result of error immediately. For writing lengthy programs in Python, the script mode is used. Using this mode, you can create and edit Python programs. Named storage locations in the computer memory, which are used to store data, are called variables. The print function is used to print a message or value. It converts the message or an object in a string before displaying it on the screen. The input function is used to accept the value for the variable from the user. The input integer and float value, you can use int or float along with the input function. Now children, let's come to the book exercise. The first exercise that is given here is check the correct options. So here, which of the following data type is not supported in Python? So here char is not supported in Python. So next question is, when a new value is stored in variable, its previous value gets overwritten. Yes, correct. Now the next questions you have to do on your own. Now Python was created by, as you know, who created it. So you have to write down the name. Now the dash key is pressed to execute the Python command. So which key we have to press to execute the command? You have to write it. Now in the interactive mode of Python, the instructions are executed. Interactive mode में जो instructions दिए जाते हैं वो कैसे execute किए जाते हैं? So children, you have to do these questions on your own. Now let's move on to the question and answers. So what are the three features of Python language? So there are many features. It's very easy to use. It's a high level language and which can be easily used, and it has also so many features. You have to write it on your own. Now what is a variable? Variable is the value where the values are inserted, the integers are written. Now explain the different working modes of Python. So we have learned various modes, the interactive mode and the script mode. Both modes you have to explain here. So similarly children, you have to answer the rest of the questions that are given here. And with this, we have completed the chapter. I hope that you have understood it. And I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay later.